नमस्कार, मैं हूं वंदना। आप देख रहे हैं स्वदेशी समाचार। आइए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। सोहना स्थित KIIT कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में इंडिया इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑन एनकॉस्टिक्स IISA 2025 की शुरुआत हुई है। एकॉस्टिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर क्वालिटी ऑफ लाइफ थीम पर आयोजित इस 3 दिवसीय सम्मेलन में 20 देशों के वैज्ञानिक और विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। फ्रांस के केविन कार्मियर ने उद्घाटन करते हुए कहा है कि इकोस्टिक्स सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि मानव अनुभव से जुड़ा विज्ञान है। डॉक्टर SS अग्रवाल ने ध्वनि को जीवन में सामंजस्य लाने वाली ऊर्जा बताया। वहीं डॉक्टर DK असवाल ने कहा कि इकोस्टिक्स अब स्मार्ट सिटी, अस्पताल और परिवहन में अहम भूमिका निभा रहा है। सम्मेलन में शोर प्रदूषण, मानसिक स्वास्थ्य, AI आधारित ध्वनि पहचान और समुद्री शोर प्रभाव जैसे विषयों पर शोध प्रस्तुत किए गए। ध्वनि संतुलन तकनीकों की प्रदर्शनी को प्रतिभागियों ने भविष्य की जरूरत बताया। Guests on the dais, guests off the dais, the eminent speakers, scholars, research scholars, director, education, and my dear fellow colleagues, ladies and gentlemen. It's absolutely an honor, a proud privilege for me to be with you all this morning on the inaugural of a very prestigious event, which is IISA 2025, co-sponsored by ICA, which is very renowned, and Acoustical Society of America, which is pervasive. I absolutely agree with him. Acoustics, whether we talk about architectural acoustic, whether we talk about aeroacoustics, physics acoustics, bioacoustics, or you talk about computing acoustics, underwater acoustic, speech acoustics, no matter whichever acoustics you talk about, in fact, all across the world, wherever we are. Of the SI, awardee Dr. Kirti Soli, CSR and Sri. Lecture title. This award is given to the afternoon lectures during the session. And airborne sound transmission system. So congratulations, Dr. Kirti. Awardee Professor Sakti Sakriyani Sakti from of Professional Studies. You have made a significant contribution to the fields of artificial intelligence. Dr. Amita, you have many feathers in your cap. You got award from the Indian Society for Technical Education, Lifetime Achievement Award from the Delhi Management Association. Give a big hand for her, please. And list is still there. Ambassador for Peace Award from the Universal Peace Federation, and you also got Srimati Sushma Swaraj Stri Shakti Samman. Please give a big hand. Dr. Amita, we really feel honored to have you here. May I now request. This is my first day in India, and I think I will remember that day for long. Yeah, much better. So I was telling you that it's my first day in India. I landed yesterday night at Indira Gandhi Airport in Delhi, and I will remember distinguished guests, organizers, fellow, researchers, industry colleagues, and students. I'm very honored to be here today at the India International Symposium of Acoustic 2025. I would like to thank the organizing committee for inviting me as a chief guest and for the warm welcome extended to ACOEN, our team here in India. To be here today, I really जो आज का ये प्रोग्राम रखा है तो किस उपलक्ष्य में रखा है और क्या कहना चाहिए? ये जो सिंपोजियम है, इंटरनेशनल सिंपोजियम है, ये साउंड्स के बारे में है। और साउंड और एकॉस्टिक दोनों एक ही चीज़ें हैं। जब हम बात करते हैं तो एयर मॉलिक्यूल आपके हवा में घूमते हैं, तो इसको हम साउंड कहते हैं, एकॉस्टिक कहते हैं। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ज़्यादा कम होती है तो फिर भी तब भी दिक्कत होती है।
तो जब बहुत इरिटेटिंग नॉइज़ आती है तो सब नॉइज़ करते हैं, हमारे लिए दिक्कत काम होती है। और वही साउंड जो है जब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी भी तुमको अच्छा भी लगता है, जैसे म्यूज़िक है, म्यूज़िक आपको बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो एकॉस्टिक है, ये जो साउंड है अलग अलग ढंग से यूज़ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अल्ट्रासाउंड सुना होगा आपने कि बॉडी के अंदर अगर आपको कुछ देखना है, जो न्यू बॉर्न बेबी के लिए जब चेक किया जाता है तो साउंड पल्स को अंदर भेजा जाता है, वो टकरा के वापस आती है। तो कैसे टकरा के वापस आती है उसके बेस पे बताते हैं कि अंदर क्या, तो इमेजिंग कर सकते हैं हम लोग। ऐसे ही जब दुश्मनों के जब सबमरीन जाती हैं समुद्र के अंदर, हमको पता करना कैसे आएगा, तो वहाँ से जो साउंड आती है उसको हम इसको मेजर कर लेते हैं। तो जो साउंड के एप्लीकेशंस हैं ऑलमोस्ट हर जगह है लाइफ के अंदर, चाहे वो म्यूज़िक है, चाहे वो नॉइज़ की रिडक्शन के लिए है। तो इस सिंपोजियम हम क्या देखते हैं कि इसके फ़ायदे भी हमको अच्छे करने हैं और इसका जो नुकसान है, जैसे कई बार आपने देखा कि बहुत इंडस्ट्री होती है या तो बहुत ज़्यादा हॉर्न करता है, तो हॉर्न बजाना तो अच्छा इसलिए है कि ताकि एक्सीडेंट ना हो, बट वो हॉर्न अगर बहुत तेज़ हो जाए तो वो इरिटेशन कर सकता है। तो साउंड का फायदे बताइए। तो दोनों ही फ़ायदे हैं, बहुत सारे फ़ायदे। जैसे मैंने बताया कि बॉडी के मेडिकल एप्लीकेशंस में हो गया, ये जो आप जो सुनते हैं वो फ़ायदा है। अगर आप बिल्कुल नॉइज़ नहीं होगा तो फिर आप कैसे जी पाएंगे, आप जो मैं बोल रहा हूँ आप जो सुन पा रहे हैं। तो अब जैसे किसी की कान में डिफेक्ट हो गया तो क्या हम नया कान बना सकते हैं, तो डायफ्राम नया बना सकते हैं वो एप्लीकेशन से। या फिर जैसे मैंने कहा था कि अर्थक्वेक आ रहा है, अर्थक्वेक की प्रिडिक्शन करनी है, तो जब अर्थक्वेक आने वाला होता है तो उससे पहले थोड़ा साउंड इमिट होती है, तो हम वो साउंड को पकड़ लेंगे तो हम अर्ली वार्निंग कर सकते हैं, पहले ही चेतावनी दे सकते हैं कि हमारी अर्थक्वेक आने वाली है। ऐसे जब ग्लेशियर मेल्ट होता है, जब लैंडस्लाइड होता है, तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि जैसे जब बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो जाती है, साउंड बियॉन्ड कंट्रोल हो जाता है, जैसे ट्रैफिक का है, तो आपने देखा होगा कि कई बार आपकी वॉल लगती हैं जो उस नॉइज़ को कट करती है। तो दोनों ही हैं, जो बियॉन्ड फ्रीक्वेंसी जो नुकसान करती है उसको कैसे कंट्रोल करें, एक तो मकसद वो है, और जो एकॉस्टिक के जो फ़ायदे हैं उसको हम कैसे करें, उसका एक सिंपोजियम है। तो इससे क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश ये देना चाहते हैं कि जो साउंड लेवल एक फ्रीक्वेंसी में आता है, एक नॉइज़ लेवल तक है, टिपिकली 50 डेसिबल तक, वो बहुत अच्छा है, वो बहुत सारे फ़ायदे हैं उसके। बट जब बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो जाती है, साउंड लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 150 dB और अदर हो जाता है, तो वो इरिटेटिंग होता है और वो अच्छा नहीं है, तो उसको वो कंट्रोल करना है। धन्यवाद। मैम सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। माय नेम इज़ प्रोफेसर अमिता देव। मैं फॉर्मर वाइस चांसलर हूँ इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी दिल्ली गवर्नमेंट से। मैं अभी इस समय एडवाइज़र हूँ AKGC अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कि अभी यूनिवर्सिटी बनने जा रहा है। तो आज जो प्रोग्राम रखा गया है तो किस तरीके से देखते हैं? आई थिंक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस है जिसका नाम है IISA, जो कि सपोर्ट किया गया है बाय एकॉस्टिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, एकॉस्टिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका एज वेल एज ICA। इस कॉन्फ्रेंस में हमें बहुत सारे रिसर्च पेपर्स, बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स आए हैं, नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया बट फ्रॉम अब्रॉड, and it will give enough of time to everyone to collaborate, interact and see how the research can be taken forward in the field of acoustics. तो जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे इसीलिए गाड़ी चलाते हैं, ज़्यादा हॉर्न देते हैं, ज़्यादा तेज चलाते हैं, तो उसको क्या करें, किस तरीके से देखें? अब जैसे अगर हम इनकी बात करते हैं कि बहुत तेज़ नॉइस क्रिएट करते हैं, वो भी अपने में बहुत बड़ा पोल्यूशन है। अगर आप देखेंगे दिल्ली NCR रीजन में मैक्सिमम प्रॉब्लम जो है वो नॉइस पोल्यूशन की ही है। नॉइस लेवल इतना बढ़ जाता है कि दैट इज़ हार्मफुल फॉर द ईयर्स ऑल्सो, तो वो हमारे कानों को और सब चीज़ के लिए हार्मफुल है। तो इस तरह की कॉन्फ्रेंस जहाँ की हम एकूस्टिक्स की बात करते हैं, इट रियली हेल्प्स कि हम क्या क्या मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं जिससे कि हम ये नॉइस लेवल को कंट्रोल कर सकें। 30 dB जो है वो तो बेस्ट एनवायरनमेंट होती है, पर जैसे ये नॉइस बढ़ती जाती है वो बहुत ही हार्मफुल है, जो कि हम ऐसे हमें महसूस नहीं होता, लेकिन ये नॉइस पोल्यूशन को ऐड करती है इसमें, और जो कि बहुत ही हार्मफुल है। तो किस तरीके से आप जनता को संदेश देना चाहते हैं? डेफिनेटली द मैसेज इज़ कि देखिए, आई थिंक द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ आवर हेल्थ, एंड सेकेंड इज़
हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत आ गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हमें इस सब चीज़ों को यूज़ करना चाहिए सो दैट हम लोग इस पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकें। हमें ऐसे ऐसे डिवाइसेस लगाने चाहिए जिससे कि पोल्यूशन काफ़ी कम हो सके, और हमें टेक्नोलॉजी को एज अ टूल यूज़ करें फॉर द बेटरमेंट। अब जैसे गाड़ियों में AI भी है, वॉल्यूम्स इतने हाई हो जाते हैं, म्यूज़िक वॉल्यूम इतना हाई होता है, स्पीकिंग वॉल्यूम इतना हाई हो जाता है, हमें इन सब चीज़ों को यूज़ करना है फॉर पॉजिटिव वर्क एंड नॉट फॉर नेगेटिव वर्क। थैंक यू। First of all, how was your experience the first day in India? As you told, you on the very first time you're in India. Yeah. Yes, it's my first time in India. I came late here today, and for sure it's very impressive. I'm very glad to be here. It was a long time that I was planning to visit India, and we are all have very busy agenda, so I will not have able to make it earlier. But yeah, I'm very happy, and I'm very impressed by the organization of this event. I'm very expecting good exchange with all the community in acoustic in India. The reception was just marvelous. People are so kind. So yeah, I'm very happy to be here, and I'm sure that it will be very productive talks in these coming days. Right. So how AI can control this noise pollutions and the issues which in society due to the noise? What's your opinion? Yes, you are starting with a very key factor that is changing our industry. Not just acoustic industry, I think is broader than acoustic, but in acoustic field, in technology and sensing, it will be massive. It's already we already see the first outcome of that. My feeling is that it will help a lot to handle a large scale of data, and you know that data is crucial when we are talking about phenomena that are complex. More we have data to diagnose, to understand, to analyze, more accurate we are, and more assertive in our action plan we can be. So this is a very big change to us to accelerate the noise annoyance solving problem. But in the other end, I'm also very cautious that we cannot just rely on AI as a magical thing that will solve everything. That means we need to let our eye open, having a critical understanding of what are the outcomes from the automatic diagnosis, and this our chance is to clear our time to have a better employment of our brain. I mean, so this is really interesting, and I truly think that we are only at the start. But one more time, let's be creative, having this tool working for us, and not us feeding AI that we think that will solve everything. This is my feeling. Okay, thank you. Thank you. ऐसे ही अन्य खबरों को देखने के लिए देखते रहिए स्वदेशी समाचार।